Good morning, students. Welcome to the class of EVS 1 again. In previous two parts, we have learned many things. Let's revise it first, then we will move on to the third part. Let's see in first part, we have seen living things and their surroundings. I told you how the living things and the surroundings are related to each other. And in second part, we learn about how animals, plants, and human beings are dependent on each other, and we have seen the types of animals also. I told you there are four types of animals that are aquatic, terrestrial, arboreal, amphibians. What do you mean by aquatic animals? You know it very well. Aquatic animals that live in the water, and terrestrial means the animals that lives on land. And then arboreal animals, they live in trees. And amphibians means that animals that lives in the water also and on the lands also. And we have seen some of the examples of also it. And now let's see here, in this part we are going to study seasonal changes in the living things. How seasons are changing and how living things are inhabitant of it. Now see, different seasons, different clothes, plants and foods. All these things we are going to learn in this chapter. So let's move on to the textbook. Now students, we are going to study about the seasons now. You know it very well that there are three seasons: winter, summer and rainy. Rainy season is also called as a monsoon season. So you can see here which season it is. Yes, it is summer season, because देखो दादाजी के हाथ में फैन दिख रहा है ना. Yes, तो गर्मी की सीजन है. Then you can see here one boy is wearing sweater, muffler and all. Then which season it is? Yes, it is winter season. So we are going to see here how the seasons are affecting a human life or the animal life. Okay, now see here on the page number 12 it is, we have three seasons: summer, the rainy season and winter. It is very hot in summer. Summer season में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है. And we wear cotton clothes. We wear cotton clothes or white clothes and drink plenty of water. We are drinking plenty of water in the summer, right? We feel thirsty, and we wear loose clothes also, है ना? Then in the rainy season we use umbrellas or different kinds of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. And in rainy seasons what we do? We wear raincoats or we carry the umbrellas so that we can be we can avoid the wetness of the rain, right? In winter we wear woolen clothes, right, and other warm clothes to protect ourselves from the कोल्ड. ठंडी से बचने के लिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं, मफलर पहनते हैं और तरह तरह के मोजे वगैरह पहनते हैं, ताकि क्या कर सकें, हम लोग ठंडी से अपना क्या कर सकें, बचाव कर सकें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेज नंबर 13. नाउ सी ऑन पेज नंबर 13, just as the three seasons affect us, they affect all other living things too. We see these changes taking place in the living world every year. ईयर बाय ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि ये चीज़ें जो सीजन्स है वो चेंज होती है, उसके हिसाब से लिविंग थिंग्स भी अपनी अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं. और ये आज नहीं है, हम लोग सालों से इसको देख रहे हैं. जैसे कि बारिश आएगी तो हम लोग रेनकोट वगैरह पहनते हैं, जैसे ठंड शुरू हो जाएगी तो हम लोग शॉल ओढ़ते हैं या स्वेटर पहनते हैं, मफलर पहनते हैं. और गर्मी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, लूज क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वाइट कलर के पहनने की कोशिश करते हैं. जस्ट लाइक दैट, विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीजन ऑफ पांगल. पांगल की सीजन बोला जाता है महाराष्ट्र में, किसको, विंटर सीजन को. दैट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स. यहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं पेड़ के वो
सारे झड़ जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं। देखो इधर पेड़ पे कोई भी लीव्स आपको नहीं दिख रहा है। यस, दिस इज द सीजन ऑफ पांगल। पांगल मीन्स इन शॉर्ट, आपको शायद अगर वर्ड पता हो तो पतझड़ की सीजन बोलते हैं इसमें। सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पांगल सीजन। द कोट्स ऑफ मैनी फरी एनिमल्स बिकम्स थिकर इन द विंटर। जो फरी एनिमल्स रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे बाल रहते हैं, जो एनिमल्स को, वहाँ पे उन लोग को क्या होता है, विंटर सीजन में उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत थिक हो जाती है। एंड देन दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। इसीलिए जो ठंडी की सीज़न में रहती है तभी उनका बचाव हो जाता है, क्योंकि उनकी स्किन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक sheep and some type of goats and the rabbits. Now the end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. क्या होता है, विंटर सीजन का जो एंड आता है वहीं से क्या होता है, जो आम की सीज़न रहती है, कैरी की सीज़न रहती है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं उसके। These blossoms are also called as मोहर in मराठी। मराठी में उसको क्या बोलते हैं, मोहर बोला जाता है। At the close of the month of the February, it becomes warmer, and by March it begins to feel the heat. It's time for summer. जैसे जैसे वो शुरू हो जाता है, फरवरी की सीज़न आते ही धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी शुरू हो जाती है, और मार्च तक क्या हो जाता है, पूरा हीट होना शुरू हो जाता है, और उसी वक्त क्या होता है, आम की सीज़न आती है। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज these leaves are reddish and shiny while they are tender, and their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the coal is heard in the many places. आप लोग ने देखा होगा, ये जो काजू का आप लोग को दिख रहा है प्लांट, वो दिख रहा है, उसके अंदर कैसे है कि उसका जो कलर रहता है ना, वो धीरे धीरे रेडिश होता है, उसके धीरे धीरे वो क्या करता है, वो ग्लो करता रहता है, वो शाइनी हो जाता है। और लीव्स जो रहते हैं फॉरेस्ट में, वो भी धीरे धीरे जब लाल होना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लाल होते होते क्या होता है, शाइनी भी होते जाते हैं। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड द वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाई। और ज़्यादातर आप लोग देखोगे समर सीजन में ज़्यादातर कौन से फ्रूट्स बिकते हैं, मैंगोज एंड वाटरमेलन्स, राइट। दिस इज द सीजन फॉर दिस फ्रूट्स। Although mango trees grow all over Maharashtra, the Konkan region is particularly famous for the mangoes. ऐसे तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे मैंगोज होते हैं, लेकिन कोंकण एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंगो जो है वो मेन सीजन मानी जाती है वहाँ पे, और वहाँ के फेमस है मैंगोज। नाउ इट इज़ ऑल्सो द सीजन फॉर कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स मतलब काजू। द रेड येलो कैश्यू नट्स एप्पल्स can be seen growing on the cashew trees on the hillsides in the Konkan region. This type of cashew nut apples you can see in which region? Konkan region it is. Konkan region में ही ऐसे दिखे रहते हैं, जैसे एप्पल के जैसा शेप दिख रहा है, ये दिख रहा है, और नीचे क्या है, काजू है। तो ये ज़्यादातर कोंकण रीजन में इस तरह के काजू होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सी इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। जून महीने में काले बादल दिखना शुरू हो जाता है। द रेनी सीजन इज़ अ शॉर्ट वे अवे। जैसे काले बादल दिखना शुरू होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं अभी बारिश होने वाली है, अभी थोड़ा ही टाइम है रेनी सीजन आने के लिए। बाय दिस टाइम वी बिगिन टू गेट जैक फ्रूट, जामुन्स एंड जावा प्लम्स एंड करबंदास. This type of fruits you can see in the rainy seasons. See the seeds of the grass and the other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it begins to rain. ये स्प्राउट कब होते हैं? जब बारिश होना शुरू होती है। जब तक बारिश नहीं होती है वो ग्रो नहीं करते हैं। After that it becomes green everywhere.
जब बारिश होती है आपने देखा होगा आजू बाजू सब जगह पे ग्रीनरीज हो जाती है. दिस ग्रीनरी इज सूदिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स. हॉट समर मंथ्स मतलब कि क्या मतलब है, जहाँ पे आपने बहुत सारे महीने निकाले गर्मी के अंदर, तो उसके बाद ये आपको अच्छा लगने लग जाता है. समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स. कई बार उसमें हम लोग को रेनबो भी दिखता है बारिश की सीजन में. देखो यहाँ पे चित्र में भी दिया है, इट इज़ अ रेनबो, राइट. आपने देखा होगा, जिसे इंद्रधनुष बोलते हैं हम. एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर एंड फ्रॉग्स अपीयर. और वहाँ पे आप लोग को मेंढक दिखाई देते हैं. वी ऑल्सो हियर द लाउड नॉइज ऑफ फ्रॉग्स क्रॉकिंग ऑल ओवर. जब बारिश आने वाली होती है उसके पहले भी और बारिश आने के बाद भी मेंढक को आप लोग ने देखा होगा, उसकी जोर जोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है. एज द रेनी सीजन एंड्स इट इज़ टाइम फॉर विंटर टू मेक अ कम बैक. जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है तुरंत ही विंटर सीजन आने की तैयारी हो जाती है. इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर. इट इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स. दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर. और इसीलिए मेंढक तब तक क्या करते हैं, एकदम डीप कोई या कुएं में या नदी में कहीं भी वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता. मोस्टली दे कम्स आउट इन द रेनी सीजन ओनली विच लास्ट फॉर 7 to 8 months. We depend on agriculture for food, and the different seasons, summer, winter and the monsoons are the time for doing different tasks in the fields. So students will studied about different type of seasons and about the plants and the animals which we can see in all these seasons, right? So you have to study all these things from the video, and we are going to see some of the exercises in the next video. So let's move on to our whiteboard. So students, we learned about these things, how the seasons are changing, सीजन कैसे चेंज होती है और वो सीजन के अनुसार लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं, और वही लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे को मदद करते हैं इस सीजन में बने रहने के लिए. तो वी हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड नाउ वी हैव लर्न ऑल द थिंग्स अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स इन दिस 3 parts. And in the next part we are going to study about the exercises which is given in the textbook. So children, let's meet in the next lecture. Thank you so much.